Hello students, in the last lecture we have discussed regarding the crystal field splitting in octahedral complexes and tetrahedral complexes. There we have says that in case of octahedral complexes, the d orbitals get split into two sets. One is T2G, another one is EG. T2 is lower energy orbital and EG is higher energy orbital. In case of tetrahedral complexes, we have said that the 5 orbitals get divided into two sets. One is EG or just E, and another one is T2. Okay, so E is the lower energy and T2 is the higher energy orbital. Okay, now how this crystal field splitting occurs? Okay, the crystal field splitting or the splitting of d orbital, it mainly depends upon two things. Okay, one, this crystal field splitting of d orbitals depends upon two things. One, that is field generated by ligand. So how much strong field is generated by ligand, and secondly, charge present on metal ion or metal ion. So it depends upon two things. One is field generated by ligand and another one is charge present on the metal ion. Okay. So second case we are not going to consider actually over here. We are going to consider the first point, that is field generated by the ligand. Okay. We can easily understood what kind of field is generated by ligand. Okay, generated by ligand by studying the absorption spectrum. Okay, so by studying the absorption spectrum, of various ligands in particular complex. Okay, in complex, we can easily say that which particular ligand is producing which type of field. Okay, and depending upon the data which is obtained from the absorption spectra, okay, for various ligands in a complex, we can arrange the different ligand in the increasing order of their field strength. Okay, so if we go through the textbook, there is one of the series electrochemical series, not electrochemical, spectrochemical series they have given. Okay, spectrochemical series they have given that it started from iodine. Okay, iodine, then bromine, then SCM, then chlorine, sulfur, sulfide, then chlorine, OH, oxalate, OH minus, then oxalate, C2O2 minus, then water, then EDTA. Okay, and after EDTA they are given the SCM. Sorry, after water there is a ENCS, then EDTA 4 minus. Okay, after that there is ammonium, NH3, En, then Cn, and finally they have given the carbon. So by observing the absorption spectra of these various ligands in a complex, we have arranged the ligands in a increasing order of their
field strength. What is this order? This is increasing order of field strength. Field strength. What it suggests? It suggests that the ion or the ligand which is present first in the series, okay, this ligand is going to produce weakest splitting, okay, or weakest field strength, due to which we are getting the lowest splitting in the d orbital, and the ligand which is present at the total right hand side of this series, okay, or at the end of this series, okay, suggests that this particular ligand is going to produce the strong field, or this is going to produce highest splitting in the complex or in the d orbitals. Okay, so this series, particular series, is called as spectrochemical series. Another series what we have studied, that is electrochemical series in case of electrochemistry. This is spectrochemical series in case of coordination compound. So this series is developed based upon the absorption spectra, okay, or data obtained from the absorption spectra for this various ligands in a complex. Now, what we can say that the first few members, okay, up to this oxalate, okay, up to this oxalate, or before water on left hand side, whatever it may be, okay, water के पहले जितने भी आते हैं water को लेके, okay, considering including water this, okay, water को include करके उसके पहले आने वाले जितने भी सारे लिगैंड हैं वो क्या करेंगे, weak field करेंगे, weak field प्रोड्यूस करेंगे, और वाटर के बाद जितने भी सारे आएंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो ये जो फर्स्ट फ्यू मेंबर्स है अप टू दिस वाटर, दीज आर व्हाट, वीक फील्ड लिगेंड्स, ओके, एंड आफ्टर वाटर अप टू CO दे आर व्हाट, स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, वाटर को इंक्लूड करके, वाटर से पहले मतलब आयोडीन, क्लोरीन, थायोसाइनिलो, देन क्लोरिडो, इवन सल्फिडो, फ्लोरिडो, हाइड्रोक्सी, देन ऑक्सलेटो एंड एक्वा. All these ligands are weak field ligands, while this NCS, the ADPA, ammonia, ethylene diamine, cyanide and carbonate, all these are strong field ligand. So what is mean by strong field ligand and what is mean by weak field ligand? Okay, so what happens to the crystal field splitting whenever there is a strong field ligand or there is a weak field ligand? Okay, for example we can write over here. So we know that these 5 orbitals are going to split into 2 sets. Okay, one is EG and another one is E2G. Okay, likewise we can another set we can write over here, a set of 5 orbitals, okay, which are split up into 2 sets, that is T2G and EG. This is your EG, this is your T2G. Okay, now what you are observing, the energy gap between EG and T2G is, that is delta octahedral. Okay, what it is called as, it is called as CFSE, crystal field stabilization energy is higher. Okay, when it is higher, it is higher when ligand is strong field. So this, the first diagram what we have drawn over here, this is for the strong field ligand. This is for the strong field ligand, high splitting, okay, higher splitting or high value of delta octahedral. While
This is also a delta octahedral. This is also your CFSE, crystal field stabilization energy. But this crystal field stabilization energy is low. Okay, the splitting is low or splitting is less compared to the first one. Okay, compared to the first one, and this happens in case of weak field ligand. ये कब होता है? जब वीक फील्ड लिगैंड आएगा तो क्या हो जाएगी, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू कम हो जाएगी, सीएफएसई क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि लेस स्प्लिटिंग हो रहा है या फिर लो स्प्लिटिंग, लो हो लेस हो। ओके, और इधर क्या है, हाई स्प्लिटिंग कैसा है, ज्यादा है, स्प्लिटिंग कैसा है, ज्यादा है। सो दिस हैपन व्हेनेवर योर लिगैंड, इट डिपेंड्स अपॉन द लिगैंड। अगर लिगैंड आपका स्ट्रॉन्ग फिट है, CO है, Cn माइनस है, NH3 है, ओके, En है, PBTA है, ये अगर लिगैंड आपके आते हैं तो ये क्या करेंगे, CFSE की वैल्यू बड़ी कर देंगे जिससे स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी। ओके, और अगर इसकी बात करते हो तो आपका आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, माइनस क्लोरीन, OH माइनस, वाटर, ये क्या करेंगे, वीक फील्ड जनरेट करेंगे। ओके, और वीक फील्ड जनरेट करने की वजह से क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग कम हो जाएगा, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू कम हो जाएगी। ओके, तो ये दो केसेस होते हैं जब भी आपका लिगैंड अराउंड द सेंट्रल एटम आता है बॉन्डिंग के लिए। ओके, अभी लिगैंड कौन से टाइप का है, ओके, या फिर लिगैंड की फील्ड कौन से टाइप की है, वो जो फील्ड क्रिएट कर रहा है जिसको हमने पॉइंट चार्ज बोला है, वो पॉइंट चार्ज की फील्ड जैसे जनरेट हो रही है उसके ऊपर स्प्लिटिंग का पैटर्न डिपेंड्स है, उसके ऊपर क्या है, स्प्लिटिंग का पैटर्न डिपेंड्स है। तो अभी आप बोलोगे कि सर ये स्प्लिटिंग पैटर्न लेके हम करेंगे क्या, ठीक है ना सर, आप हाँ बता रहे हैं, ठीक है, इधर स्ट्रॉन्ग फिट है, आपके CO है, Cn है, En है, PTDA है, ये जो बहुत ज्यादा क्या हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया या फिर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो गया, अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आ रहा है तो एनर्जी गैप कम हो रहा है, इसको लेके करने का क्या, ओके, इसको लेके करने का क्या, तो if you understand this thing, okay, you will easily understood why particular complexes are low spin and why particular complexes are high spin complexes। तो high spin low spin complexes क्यों बन रहे हैं, outer orbital complexes और inner orbital complexes क्यों बन रहे हैं, diamagnetic paramagnetic complexes क्यों बन रहे हैं, ये पूरा डिटेल CFSE वैल्यू के ऊपर से ही आपको मिलता है। तो देखो कैसे हम बताते हैं, तो इसके लिए हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करेंगे मेटल की, ओके, मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, we have to consider some electronic configuration of metal. For electronic configuration, for the metal containing electronic configuration D1, D2 and D3, there is no problem, okay, whatever the ligand will be, either it will be strong field, either it will be weak field, the electrons goes into T2G orbitals as per Hund's rule। ये किसके हिसाब से चल रहा है, Hund's rule के हिसाब से चल रहा है कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल पहले सिंगली ऑक्यूपाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार ऑर्बिटल का डायग्राम बनाऊंगा, ये ऑर्बिटल क्या हो गए, स्प्लिट हो गए, और स्प्लिट होके एक T2G सेट का एक T2G सेट बना। समझो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D1 है, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन है। अभी जब भी कभी आपका मेटल लिगैंड के साथ बॉन्डिंग के लिए जाएगा तो क्या होने वाला है, ये 5 ऑर्बिटल का सेट क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। अभी आपको पता नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन किधर का है, T2G का है या किसी का है, पता नहीं, 5 एनर्जी और
5 ऑर्बिटल जो है वो इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो आफ्टर स्प्लिटिंग, आफ्टर स्प्लिटिंग ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, ओके। तो एज पर हर्ट्ज रूल क्या बताता है कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स फर्स्ट ऑक्यूपाई सिंगली एंड देन पेयरिंग स्टार्ट। ये किसका ये रूल है, हर्ट्ज का रूल। तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल अभी T2G और EG में लोअर एनर्जी कौन है, T2G है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। अगर आपकी केस D2 है, समझो दो इलेक्ट्रॉन है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, सेकंड इलेक्ट्रॉन भी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में ही जाएगा। अगर आपका केस D3 है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फील्ड फर्स्ट एज पर द हर्ट्ज अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज। तो ये D3 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका लिगैंड क्या है, स्ट्रांग फिट है, वीक फिट है, इससे कुछ लेना देना नहीं है, ओके। आपका इलेक्ट्रॉन जो है किधर जाने वाला है, T2G में जाने वाला है, ओके। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4 बन जाता है, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4 बन जाता है, इसका मतलब D में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी ये इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में पेयर हो जाएगा, T2G में इसका पेयरिंग होगा, या फिर ये इलेक्ट्रॉन EG में एंटर करेगा। ये कौन बताता है, ये बताती है आपकी CFSE की वैल्यू, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जिसको हम बोल रहे हैं, उसके वैल्यू के ऊपर से हम क्या बताते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर किधर होगा, ठीक है। और इसके लिए हम दो चीजें कंसीडर करते हैं, एक द वैल्यू ऑफ CFSE एंड पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी ये क्या चीज है, सर आज ही बताता है, पेयरिंग एनर्जी में कुछ रहती है, हाँ रहती है। एनर्जी रिक्वायर, किसकी एनर्जी रिक्वायर टू पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन सिंगल ऑर्बिटल। तो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन ऐड करना जिनका स्पिन अपोजिट होगा, ओके, जिनका स्पिन अपोजिट होगा, तो ऐसे और दोनों सेम चार्जेस है, नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन, दोनों का चार्ज सेम है, स्पिन अपोजिट, ऐसे इलेक्ट्रॉन दोनों एक साथ रखने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, उसको एनर्जी, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। अभी CFSE को तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया है डेल्टा O करके इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और इस पेयरिंग एनर्जी को हम बताते हैं P करके, पेयरिंग एनर्जी को बताते हैं P करके। एज्यूम करो अगर आपकी पेयरिंग एनर्जी, ओके, एज्यूम करो आपकी पेयरिंग एनर्जी जो है वो आपके क्रिस्टल फिल्म स्टेबलाइजेशन एनर्जी दैट इज डेल्टा O से ज्यादा है। इफ पेयरिंग एनर्जी इज मोर देन द CFSE, इधर जो वैल्यू आपको मिल रही है कैलकुलेशन के बाद, ओके, वो वैल्यू अगर पेयरिंग एनर्जी से कम है, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू जो है वो पेयरिंग एनर्जी से कम है या फिर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है आपके CFSE से, ओके, क्या होगा है, देखो, फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर into EG orbital। फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू EG ऑर्बिटल, तो ये किधर चला जाता है, EG में चला जाता है। कब, अगर डेल्टा ऑक्टाहेड्रल पेयरिंग एनर्जी से कम है। अभी डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू लो कब रहेगी, के स्प्लिटिंग अगर लेस हो रहा है तो क्या हो जाएगी, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल लो हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, जब भी कभी आपका वीक फील्ड लिगैंड आएगा, तो स्प्लिटिंग लेस करेगा, और स्प्लिटिंग लेस करने से लो ऑक्टाहेड्रल CFSE आपको मिलेगी, या फिर डेल्टा O की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ऐसे केसेस में जिधर जिधर
कम है, ऐसे केसेस में फोर्थ इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, Eg में चला जाता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन लिखते हैं इस केस में T2G3 Eg1, T2G3 Eg1 करके लिखते हैं। और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ये हाई स्पिन क्यों है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। ओके, सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड। फोर्थ इलेक्ट्रॉन Eg में चला जा रहा है एंड लिगैंड, जो लिगैंड डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू लो देगा, उस लिगैंड को, लिगैंड इज कॉल्ड एज वीक फील्ड। तो इजी है, आप डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कैलकुलेट करो, पेयरिंग एनर्जी को कैलकुलेट करो, दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करो, आपको इजीली समझ में आएगा कि लिगैंड आपका वीक फील्ड है या स्ट्रांग फील्ड है, आपका कॉम्प्लेक्स लो स्पिन है या हाई स्पिन है। ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ओके, वीक फील्ड लिगैंड मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। वंस अगेन रिलेशन ऑफ यूनिटी ने जो बताया था कि Cl आता है तो sp3d2 बन रहा है, तो sp3d2 क्यों बन रहा है, क्योंकि Cl आपका वीक फील्ड लिगैंड, Cl क्या है, वीक फील्ड लिगैंड। ओके, अगर समझो कि आपका डेल्टा ऑक्टाहेड्रल पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, आपका डेल्टा ऑक्टाहेड्रल जो है वो क्या है, पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, आपकी CA की वैल्यू हाई है दैट पेयरिंग एनर्जी। ऐसा कब होगा, CA की वैल्यू कब ज्यादा मिलेगी, जब भी इधर का स्प्लिटिंग क्या होगा, हाई होगा, स्प्लिटिंग क्या होगा, हाई होगा। और हाई स्प्लिटिंग कौन देता है, स्प्लिटिंग हाई होना चाहिए, हाई स्प्लिटिंग इसके लिए कौन चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, बराबर है ना। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, हाई स्प्लिटिंग, डेल्टा वैल्यू हाई होगी, ठीक है। अगर आपका डेल्टा ऑक्टाहेड्रल पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है तो क्या होता है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन enters into T2G, ओके, फोर्थ इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, अगर आपकी वैल्यू डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू मतलब ये स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है, एनर्जी गैप ज्यादा हो गया, तो हायर एनर्जी ऑर्बिटल पहले फिल होगा क्या, नहीं, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल पहले फिल हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, तो इधर पेयरिंग स्टार्ट हो जाता है। ओके, इधर क्या हो जाता है, पेयरिंग स्टार्ट हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम लिगैंड को बोलते हैं, उस लिगैंड को क्या बोलेंगे, जो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू ज्यादा देगा, लिगैंड इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड and complex is low spin complex, low spin complex, okay, complex is low spin complex। तो ऐसा देखा गया है कि D4 and D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन रहने वाले जो मेटल आयन है, आयन है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के साथ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं, ठीक है। क्या बता रहा हूं मैं, मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन अगर D4 एंड D7 है तो ऐसे केसेस में जो मेटल आयन्स है वो कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल बनाते हैं, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं।
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं एज कंपेयर टू वीक फील्ड लिगेंड। अभी समझ में आया वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है, क्यों हो रहा है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो हमने दो कॉम्प्लेक्सेस आउटर इनर करके स्टडी किए थे देखो वीवीडी में, ठीक है। एक CO NH3 प्लस करके लिखा था और एक स्टडी किया था CO F6 माइनस करके, बराबर है। तो अभी इसको हम अगर CFT के हिसाब से बताना चाहते हैं तो ये D2sp3 दे रहा है हाइब्रिडाइजेशन, क्यों दे रहा है, क्योंकि दिस NH3 इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड होने से क्या होता है कि मैंने बताया था कि ये हाइब्रिडाइजेशन की जब भी चला जाएगा तो इधर के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे, बराबर है। ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि NH3 आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से क्या हो रहा है Eg का सेट हायर एनर्जी को चला जा रहा है। ओके, ऑक्टाहेड्रल डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू क्या हो रही है, डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो पेयरिंग क्या हो जाएगा, इजीली पॉसिबल हो जाएगा, समझ में आई बात। और दूसरा कॉम्प्लेक्स हमने इसको बोला था और इधर क्या बनाया था कि sp3 d2 बनाया था, तो ये वीक फील्ड लिगेंड है। ओके, वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग छोटा हो जाएगा आपका d2g Eg, ठीक है। और इधर स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या हो जाएगा Eg T2g, मैंने अभी दिखाया था, ठीक है। तो स्प्लिटिंग छोटा हो रहा है, लेस हो गया, स्प्लिटिंग कम हो रहा है, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू लो हो रही है, पेयरिंग एनर्जी हाई है, तो क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे। ओके, इधर क्या है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू हायर देन द पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग स्टार्ट, ठीक है ना, समझ में आई बात। Okay, so this is regarding the octahedral complexes CFSE and the relation between CFSE and pairing energy. Okay, the pattern of splitting and what is called as strong field ligand and what is called as weak field ligand. So remember the spectrochemical stages, the ligands which are given on the left hand side, extreme left hand side or before the water, including water, they are liquid, and the ligands which are present after water, okay, they are represented after the water, after molecule of H2O, they are strong field ligands. They are what? Strong field ligands. Now we will discuss color. Color complex, and for that purpose we will take example of titanium. Okay, once again the same example what we have done in the F and D and F block level. Okay, so the 5 orbital get divided into 2 set, सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एग्जांपल दिया है हमने टिटेनियम का, ठीक है ना। तो ये T2g है और ये क्या है Eg, ठीक है। तो अगर आप इस एनर्जी गैप का डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं, ओके, सो द एनर्जी in visible region of electromagnetic spectrum is sufficient to transfer the electron
from T2G to EG। ये जो एनर्जी गैप है, आपने जो EG और T2G का जो एनर्जी गैप डेल्टा ऑक्टाहेड्रल करके बोला है, ये एनर्जी गैप इतना है कि अगर आप विजिबल रीजन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर यानी कि इस कॉम्प्लेक्स से पास करते हो, ओके, तो विजिबल रीजन में जो विजिबल रेडिएशंस थे, ओके, जिसको आप विबगर का कलर बोलते हो, जो वो रेडिएशंस है उनसे मिलने वाली एनर्जी सफिशिएंट है किसके लिए? T2G का इलेक्ट्रॉन EG में ट्रांसफर करने, T2G का इलेक्ट्रॉन EG में शिफ्ट करने के, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिशन है, अभी ये T2G भी d ऑर्बिटल है और ये EG भी d ऑर्बिटल, तो ये ट्रांजिशन कैसा हो गया? d d ट्रांजिशन, एंड दैट्स व्हाई द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और कलर इन कॉम्प्लेक्सेस इज ड्यू टू व्हाट इट इज d d ट्रांजिशन, d d ट्रांजिशन इन विजिबल रीजन। इधर में क्या है? विजिबल रीजन में, ठीक है। विजिबल रीजन में जो डी डी ट्रांजिशन हो रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है? कलर हो रहा है। और ये ट्रांजिशन जो है डी डी ट्रांजिशन, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है EG टू T, सॉरी T2G टू EG, रिप्रेजेंट करते हैं T2G टू EG, या फिर इसका इनिशियल का इलेक्ट्रॉन कंफर्मेशन T2G1 EG0 टू T2G0 EG1, okay, this is in case of titanium complex। इस कॉम्प्लेक्स के लिए जब हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो डी डी ट्रांजिशन कैसे हो रहे हैं? T2G टू EG हो रहे हैं, किधर हो रही है? विजिबल रीजन में। विजिबल रीजन में क्यों होती है? क्योंकि विजिबल रीजन की एनर्जी सफिशिएंट है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको मिलते हैं, ओके। और मैंने बताया था ये अगर आपको याद तो, ओके, डी ब्लॉक 11 का वीडियो निकाल के देख लो। मैंने एक बनाया था सर्कल, ओके, या फिर मैंने ऐसा बताया होगा, ओके। तो मैं क्या बताता था कि वीरेंद्र सहवाग आउट यट गांगुली बैटिंग करके बोला, ओके। तो जो कलर एब्सॉर्ब हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखेगा, ओके। जो कलर एब्सॉर्ब हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखने वाला है, ठीक है ना। तो और इसके लिए और एक एग्जांपल बुक में दिया है कि निकेल, ओके, निकेल का एक एग्जांपल दिया है, देखो, निकेल क्लोराइड NaCl2 अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, ओके, NaCl2 का NaCl2 को अगर आप डिसॉल्व करते हो H2O में तो आपको कॉम्प्लेक्स वाटर में क्या मिलेगा? H2O6 कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ओके। अभी ये कॉम्प्लेक्स का जो कलर है वो ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स है, ओके। ये कैसा है? ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स है। और इसी में जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन में अगर आप इथिलीन डायमाइन और इथेन 1,2 डायमाइन ये लिगैंड स्टोइचियोमेट्रिकली ऐड करते जाते हैं, तो रेशियो 1:1 1:2 1:3 के हिसाब से, ओके। तो आपको क्या मिलता है कि ये कॉम्प्लेक्स जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को EM रिप्लेस कर देगा। अगर आपने इसमें EM डाल दिया 1:1 के हिसाब से तो आपको क्या मिलेगा?
निकेल EnH2O4 ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर और एक नियम डालते हो तो इधर के और दो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, और फाइनली अगर आप 3 डालते हो तो क्या हो जाएगा कि निकल में सभी के सभी वाटर मॉलिक्यूल 3 से रिप्लेस हो जाएंगे, बराबर है। तो कैसा रिएक्शन का सीक्वेंस दिया है और उसका कलर बताया, पहले ग्रीन था वाटर के साथ, उसके बाद में वो ब्लू हो जाता है, उसके बाद में वायलेट हो जाता है, फिर पेल ब्लू हो जाता है, उसके बाद में ब्लू हो जाता है, उसके बाद में वायलेट हो जाता है, ओके, उसके बाद में वायलेट हो जाता है, ठीक है। तो ये है कलर। देखो ये क्या था, ग्रीन था, उसके बाद में ये पेल ब्लू बना है, इसके बाद में ये ब्लू बना है, और उसके बाद में ये वायलेट कलर चला, पर्पल वायलेट कलर चला, ठीक है। तो अगर इसको अच्छे से स्टडी करोगे तो समझ में आएगा कि जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आ रहा है, जैसे जैसे EN की एंट्री हो रही है, जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर, जो वेवलेंथ एब्सॉर्ब हो रही है, वो क्या हो रही है, लोअर वेवलेंथ के लाइट एब्सॉर्ब हो रहे हैं, ताकि हायर एनर्जी को मिल सके, हायर एनर्जी आपको मिल सके। तो जो एब्सॉर्ब कर रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिख रहा है, ठीक है। So this is regarding the color and stringing pattern in the octahedral complexes, strong field ligand, weak field ligand. Okay, so we will discuss the things, that is limitations of CFT and bonding in metal carbonyls in the next lecture. Thank you.